بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملی نغمہ ہے اور اس کے شاعر ہیں احمد ندیم قاسمی۔ اور خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ اس ملی نغمے کا انداز بیاں دعائیہ ہے۔ احمد ندیم قاسمی ایک بلند پایہ شاعر ہیں۔ آپ لکھتے ہیں یا دعا گو ہیں۔ اس نظم میں، اس ملی نغمے میں آپ لکھتے ہیں یا دعا گو ہیں کہ میری عرض پاک بہار سے مہکتی رہے اور یہ بہار کبھی ختم نہ ہو۔ اگر یہاں پر فصل گل سے مراد نوجوان کو لیا جائے تو مفہوم کچھ یوں سامنے آئے گا کہ میری عرض پاک کے نوجوانوں کو اے خدا وہ قابلیت، عروج اور علم عطا فرما کہ وہ میرا وطن ناقابل تسخیر ہو جائے اور یہاں زوال کے گزرنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اصل میں یہاں پر احمد ندیم قاسمی کے مخاطب نوجوان ہے۔ ان اشعار میں آگے چل کر وہ قوم کے لیے کیا دعا کرتے ہیں اگلے اشعار میں ہم وہ دیکھیں گے۔ تو یہاں پر وہ کیا خیال پیش کر رہے ہیں کہ وہ نوجوانوں کو مخاطب کر رہے ہیں۔ فصل گل وہ نوجوانوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے ہو جائیں، علم و ہنر اور تعلیم میں ہر میدان میں اتنے کامیاب ہو جائیں کہ وہ ناقابل تسخیر ہوں اور میرا وطن جو ہے، میرے وطن پر ایسی بہار اترے۔ کیونکہ نوجوان کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک سوچ ہے، کیونکہ نوجوان جو ہے کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں اور قوم ان سے بہت سی امیدیں وابستہ رکھتی ہے۔ نوجوانوں کا علم و ہنر میں عروج قوم کی ترقی کا سبب بنتا ہے۔ یہاں پر سوچ کیا ہے کہ اگر نوجوان ہنرمند ہوگا، اس کو عروج ملے گا، وہ فصل گل ایسی ہوگی تو میرا عرض پاک ان کی خوشبو سے مہکے گا۔ اس لیے احمد ندیم قاسمی دعا گو ہیں کہ ان کے وطن کے نوجوان وہ علمی عروج حاصل کریں کہ دنیا میں اپنی مثال بن جائیں، آپ بن جائیں، ہمارا وطن ترقی کی راہوں پر گامزن ہو جائے۔ میرے وطن میں بہار کا راج ہو اور یہ بہار کبھی ختم نہ ہو، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب علمی میدان میں ہمارے وطن کے نوجوان کو شکست دینا ناممکن ہو جائے۔ بقول اقبال، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اسی بلند پروازی اور لازوال بہار کا خواب اپنے وطن کے نوجوانوں کے لیے احمد ندیم قاسمی بھی دیکھ رہے ہیں، تاکہ اس عرض پاک پر بہار کا راج ہمیشہ قائم رہے اور یہ ان کی خوشبو سے مہکتا رہے۔ اور ان کی دعا ہے کہ یہاں پر کبھی زوال نہ آئے، بہار کبھی ختم نہ ہو، میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ اس ملی نغمے کا انداز دعائیہ ہے۔ احمد ندیم قاسمی افسانہ نگار، صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بلند پایہ شاعر بھی ہیں۔ اس شعر میں آپ لکھتے ہیں کہ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں اور کبھی خزاں کو گزرنے کی مجال نہ ہو، یعنی ہمت نہ ہو۔ یہ تبھی ممکن ہے جب اس وطن کے نوجوان علمی میدان میں کمال اور ترقی حاصل کر لیں۔ یہاں پر ان کے مخاطب پھول، فصل گل سے مراد نوجوان ہیں، اس ملک کے نوجوان ہیں۔ نوجوان علمی میدان میں کمال اور ترقی حاصل کر لیں۔ اس ملی نغمے میں فصل گل سے مراد نوجوان ہیں۔ اس وطن کے نوجوان کو ایسا ہونا چاہیے کہ اسے شکست دینا ناگزیر ہو۔ اس وطن کے نوجوان کو ایسا ہونا چاہیے ان پھولوں کی، نوجوانوں کی بہار ہمیشہ قائم رہے اور یہ بہار
कुछ वक्त के लिए ना हो, हमेशा बनी रहे। ये फूल नौजवान बरसों खिले रहें और इस वक्त को अपनी महक से मुअत्तर करते रहें। इस अर्ज़े पाक की बहार ऐसी हो कि खिज़ां को गुजरने का कभी हौसला ना हो कि वो इस अर्ज़े पाक से गुजरे, या क्योंकि वो नौजवान इस कदर बाहुनर बाकमाल हो कि खिज़ां को भी एहसास हो, अंदाज़ा हो कि इन्हें या इस कौम को शिकस्त देना मुमकिन नहीं, इसलिए यहाँ पर कभी भी खिज़ां का मौसम ना आए। यानी इस वतन के नौजवान इस कदर बाहुनर बाकिरदार हों और इल्मी मैदान में इस कदर आगे हों कि दुश्मन की कभी इस वतन को मैली आंख से देखने की हिम्मत ना हो। एक और कॉन्सेप्ट या तसव्वुर ये भी सामने आता है कि अगर कौम मजबूत होगी, इल्मी मैदान में आगे होगी, ताकतवर होगी और तरक्की की राह पर चल रही होगी, तो दुश्मन को भी कभी मैली निगाह से देखने का हौसला नहीं पड़ेगा, तो वो कभी भी नजर उठाकर नहीं देखेगा। हम इस ख्याल को कैसे लिख सकते हैं? यानी इस वतन के नौजवान इस कदर बाहुनर बाकिरदार हों और इल्मी मैदान में इस कदर आगे हों कि दुश्मन की कभी इस वतन को मैली आंख से देखने की हिम्मत ना हो और इस वतन को की बहार हमेशा कायमो दायम रहे। अगर यहाँ पर खिज़ां से मुराद दुश्मन लिए जाए तो फिर ये भी एक तस्वुर सामने आएगा। बकौल इकबाल, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। यानी इस कदर अपने आप को बाहुनर और बाकमाल कर। अहमद नदीम कासमी अपने वतन और नौजवानों को नाकाबिले तस्खीर और इल्मो हुनर के मैदान में सबसे आगे देखना चाहते हैं। उनका ये ख्वाब हमें इस मिली नगमे में नजर आता है, उनकी ये दुआ हमें इस मिली नगमे में नजर आती है। आप अपने वतन और नौजवानों के लिए लाजवाल अरूज के लिए दुआ गो हैं। यहाँ जो सब्जा उगे वो हमेशा सब्ज रहे और ऐसा सब्जा कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। अहमद नदीम कासमी दुआया अंदाज में लिखते हैं, यहाँ जो सब्जा उगे अरूज आए वो हमेशा कायम रहे, यहाँ की बहार की कोई दूसरी मिसाल ना हो। अहमद नदीम कासमी अपने वतन के नौजवानों के लिए मिसाली कामयाबी के ख्वाहिशमंद हैं। यही नहीं, वो दुआ गो हैं कि ये तरक्की कामयाबी हमेशा कायम रहे और इस अरूज की कोई दूसरी मिसाल ना हो। यहाँ जो सब्जा उगे वो हमेशा सब्ज रहे और ऐसा सब्ज के जिसकी कोई मिसाल ना हो। हम कैसे लिखेंगे? या और इस अरूज की कोई दूसरी मिसाल ना हो। नस्ल दर नस्ल वो अर्ज़े पाक के नौजवानों के लिए इल्मी मैदान में मिसाली और लाजवाल कामयाबी के ख्वाहिशमंद है। यानी सिर्फ आज नहीं, हमेशा ऐसे ही इस धरती से नौजवान सामने आए जो अपनी मिसाल न रखते हों, इतने बाकमाल और बाहुनर हों कि दुनिया उन पर हैरान रह जाए, दंग रह जाए उनका कमाले फन देखकर और उस अरूज को ना हासिल कर सके। और ये नस्ल दर नस्ल सिलसिला चले और अर्ज़े पाक के नौजवान इल्मी मैदान में मिसाली और लाजवाल कामयाबी हासिल करते रहें। यही ख्वाहिश है अहमद नदीम कासमी की। इस ख्याल को आप यूं बयान करते हैं, ऐसा सब्जा कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। यानी हर मैदान में मेरे वतन के नौजवान वो कामयाबी हासिल करें जिस मुकाम तक अरूज तक पहुंचना नामुमकिन हो, आसान ना हो। यानी अर्ज़े पाक का हर नौजवान अपनी मिसाल आप हो। नौजवान कभी भी किसी भी कौम का सरमाया होते हैं और इनकी तरक्की मुल्क की तरक्की है, मुल्क की खुशहाली है। इनका नाकाबिले तस्खीर होना मुल्क का नाकाबिले तस्खीर होना है। तो इसी ख्याल के पेश नजर आप कहते हैं कि यहाँ जो सब्जा उगे वो हमेशा सब्ज रहे, यानी मेरा वतन हमेशा सरसब्ज शादो आबाद रहे। इसे मुख्तसर जुमले में इस तरह लिख सकते हैं
کہ नौजवान किसी भी मुल्क की तरक्की के ज़ामिन होते हैं। इसी ख्याल के पेश नज़र आप नौजवानों का अरूज और कामयाबी की राह पर देखना चाहते हैं ताकि मुल्क तरक्की हासिल कर सके। यही नहीं, अहमद नदीम कासमी नस्ल दर नस्ल इसी अरूज के लिए दुआ गो हैं। ऐसा सब्जा जिसकी दुनिया में मिसाल ना हो और ये सब्जा हमेशा कायम रहे। दुनिया पाकिस्तान को इसके अरूज और कामयाबी से जाने और अर्ज़े पाक का जुदागाना मुकाम हो और वो मुकाम हमेशा बना रहे। इस अर्ज़े पाक का हर नौजवान अपनी मिसाल आप हो। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। अहमद नदीम कासमी दुनिया में कामयाबी के आसमान पर मुसलमान नौजवानों का नाम लिखा देखना चाहते हैं। अर्ज़े पाक को हमेशा सरसब्ज, आबाद और मिसाली देखने के लिए दुआ गो हैं। खुदा करे कि वकार इसका गैर फानी हो और इसके हुस्न को तशवीशे माहो साल ना हो। मैंने आपसे आगाज में भी कहा था कि इसके जो अगले अशार हैं वो थोड़ा सा और मुख्तलिफ पहलू भी अपने अंदर रखे हुए हैं। पहले अशार में जिस तरह हमने देखा कि मुखातिब नौजवान है, बहार गुल से उनकी मुराद नौजवान है और बहार वो अपने वतन के लिए देखना चाहते हैं कि वो नौजवानों को हमेशा महकता देखना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर वो क्या दुआ कर रहे हैं या किस चीज के ख्वाहिशमंद हैं, हम ये देखेंगे। ये मिली नगमा दुआया अंदाज में लिखा गया। अहमद नदीम कासमी इस शेर में अपने अर्ज़े पाक के लिए दुआ गो हैं। खुदा करे कि इस अर्ज़े पाक को दुनिया में वो वकार मिले जो कभी खत्म ना हो। यानी यहाँ पर वो अपने वतन के लिए दुआ कर रहे हैं। इन अशार में अपने वतन के लिए दुआ कर रहे हैं कि इनके अर्ज़े पाक को दुनिया में वो वकार और वो मुकाम मिले जो कभी खत्म ना हो। और ये भी मुमकिन इसी तरह है कि जब इसमें रहने वाले नौजवान तरक्की करें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये ख्याल है कि इस अर्ज़े पाक को दुनिया में वो वकार मिले जो कभी खत्म ना हो। इस वकार को हुस्न को वक्त की रफ्तार भी मान ना कर सके। यानी एक वक्त होता है कि आप अरूज पर होते हो, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज खत्म हो जाती है, लेकिन आप अपने वतन के लिए दुआ गो हैं कि ये वकार और हुस्न हमेशा बना रहे। वक्त की रफ्तार भी उसको मान ना कर सके, इस रोशनी को, इस हुस्न को, इस खूबसूरती को, इस वकार को, इस अरूज को। अहमद नदीम कासमी एक मिसाली और दुनिया में बावकार मुल्क के ख्वाहिशमंद है। यानी उनका ख्वाब क्या नजर आ रहा है इस शेर में कि एक मिसाली मुल्क हो और दुनिया में बावकार मुल्क हो। हम उस मुकाम पर खड़े हों दुनिया में कि दुनिया में पाकिस्तान का नाम इज्जत तकरीम के साथ लिया जाए और ये वकार, ये इज्जत सदा कायमो दायम रहे। यानी ये वकार और इज्जत हमेशा कायमो दायम रहे। मेरे वतन का ये हुस्न, ये वकार माहो साल के गुजरने पर भी मानना पड़े, कि वक्त गुजरने के साथ ये मानना पड़े, बल्कि इसमें दिन ब दिन इजाफा हो, बल्कि हर सुबह की किरण के साथ मजीद रोशन हो। बकौल इकबाल, दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना ने सुबह शाम पैदा कर। कि हमें हर वक्त इस चीज के लिए कोशिश करनी चाहिए कि अपने आपको बाहुनर और काबिल बनाए, नई दुनिया, नया जहान तलाश करें और अपना मुकाम तलाश करें। इसी तरह हम अपने वतन के लिए और अपनी जात के लिए भी कुछ कर सकते हैं और एक बाइज्जत जिंदगी गुजार सकते हैं। कुछ ऐसा ही तसव्वुर और कुछ ऐसी ही दुआ हमें यहाँ भी मिलती है कि आप अपने वतन के लिए दुआ गो हैं, अपने नौजवानों के लिए दुआ गो हैं, वतन की बहार के लिए दुआ गो हैं कि ये बहार किस तरह कायम रहे। यही नहीं, आप इस नज़्म में और ये चीज
नज्म को, इस मिली नगमे को मजीद उजागर कर रही है कि आपका फन किस मयार पर है। आप साथ ही साथ बता रहे हैं वो रास्ते, वो राहें, वो रहनुमाई दे रहे हैं जिससे मुमकिन है इन सब चीज़ों को हासिल करना। वो क्या है? वो इल्म है, वो हुनर है, वो नौजवानों की तरक्की है। ये तमाम चीज़ें अगर मौजूद हों तो पाकिस्तान की बहार कभी ख़त्म नहीं होगी और ये बहार हमेशा कायम रहेगी। तो इस शेर में आप दुआ कर रहे हैं कि मेरे मुल्क का वक़ार गैर फ़ानी हो और वक्त के गुजरने से उसे कोई अंदेशा ज़वाल ना हो वक्त के गुजरने से, बल्कि वो और ज़्यादा रोशन होता जाए, मेरा पाकिस्तान और ज़्यादा बावकार होता जाए। दुनिया में अर्ज़े पाक गैर फ़ानी वक़ार हासिल करे और वक़ार के इस हुस्न को माहो साल से भी कोई अंदेशा ज़वाल ना हो। ये हुस्न, ये वक़ार वक्त गुजरने के साथ साथ मज़ीद बढ़ता जाए। दुनिया के आसमान पर अर्ज़े पाक रोशन सितारा बनकर हमेशा चमकता रहे। इस शेर में शायर अहमद नदीम कासमी इन नेक तमन्नाओं के ख्वाहिशमंद है अपने अर्ज़े पाक के लिए, अपने वतन के लिए। अब यहाँ पर इससे अगला जो शेर है, यहाँ पर ख्याल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हर एक फर्द हो तहजीबो फन का औजे कमाल। इस शेर में अहमद नदीम कासमी के मुखातिब कौम है। ये मिली नगमा दुआया अंदाज में बयान किया गया। आप कौम के हर फर्द के लिए दुआ गो हैं, यानी यहाँ पर जो है वो अफराद को, फर्द को दुआ दे रहे हैं कि वो तहजीब को अपनाए, अपनी तहजीब को अपनाए और कमाल फन में, हुनर में बहुत बहुत अरूज हासिल करे। क्यों हासिल करे? क्योंकि इसी तरह से कौम की तरक्की मुमकिन है। कोई गम ना हो, कोई इस मुल्क में रहने वाला बुरे हाल और तंगदस्ती में वक्त ना गुजारे। ये ख्वाहिशात, ये तमन्नाएं हैं अहमद नदीम कासमी की इस शेर में। आप कौम के हर फर्द के लिए दुआ गो हैं कि हर फर्द बाहुनर हो और अपने कमाल में काम में मिसाली हो। कौम का हर फर्द अपनी तहजीब की तस्वीर हो, यानी वो अपनी तहजीब से आशना हो और उसके ऊपर कायम रहे, यानी इस्लामी इक़दार से आशना हो, बाहुनर और बाकमाल हो। दूसरा ख्याल क्या है? बाहुनर और बाकमाल हो। हर फर्द को अपने हुनर और कमाल में अरूज हासिल हो और अपना सानी ना रखता हो। ये दुआ है अहमद नदीम कासमी की कौम के हर फर्द के लिए। मजीद आप लिखते हैं कि कौम का कोई फर्द गमज़दा ना हो। यहाँ पर थोड़ा सा, अब वो उनका मुखातिब जो है अफराद है, वहाँ यहाँ पर वो गम को नहीं देखना चाहते, किसी को दुखी और तंगदस्त नहीं देखना चाहते। मजीद आप लिखते हैं कि कौम का हर कोई फर्द गमज़दा ना हो, कोई दुख उसकी जिंदगी में ना आए और उसकी आंखों को नम ना करे। कौम का कोई भी फर्द खस्ता हाल ना हो, ऐसा ना हो कि उसके पास इतने वसाइल मौजूद ना हो कि वो अपने वसाइल मौजूद ना हो कि वो बुरे हाल में रहने पर मजबूर हो जाए। शायर अपने अर्ज़े वतन को हर लिहाज से खुशहाल देखना चाहते हैं। यानी अगर हम एक नज़र इस मिली नगमे पर डालें और इसका जायजा लें तो देखा जाए तो हर लिहाज से शायर जो हैं अपने वतन को खुशहाल देखना चाहते हैं। ना वो आवाम को, इसमें रहने वालों को गमज़दा देखना चाहते हैं, ना बुरे हाल में तंगदस्त देखना चाहते हैं, और वो हर फर्द को बाहुनर और बाकमाल देखना चाहते हैं। और इस अर्ज़े पाक पर हमेशा जो है बहार की ख्वाहिश रखते हैं और चाहते हैं कि उनका अर्ज़े पाक ऐसा हो कि उसकी महक हमेशा कायम रहे और तमाम दुनिया उस महक को महसूस करे। शायर इस कौम में, शायर इस अपने
अर्ज़ वतन को हर लिहाज से खुशहाल देखना चाहते हैं। अफराद को गमज़दा देखना नहीं चाहते, तंगदस्त देखना नहीं चाहते, इसलिए दुआ गो हैं। यही नहीं बल्कि इस शेर में खुशहाली की राह भी दिखा रहे हैं। यानी आप सिर्फ इतना ही नहीं कि आप नेक तमन्नाओं के ख्वाहिश तमन्नाएं रखते हैं वतन के लिए, मुल्क के लिए, लोगों के लिए, आप उसकी राह भी दिखा रहे हैं। और वो राह क्या है? बल्कि अपने शेर में खुशहाली की राह भी दिखा रहे हैं कि अफराद खुद को बाकमाल और हुनरमंद करें और अपनी तहजीब का आईना बन जाएं। यानी अपनी तहजीब और इक़दार को पहचाने और उसका आईना हो, उसकी तस्वीर हो, ताकि आने वाला दिन उनके लिए कामयाबी की नवीद लेकर आए। ऐसा करने से क्या होगा कि हम अपनी इस्लामी इक़दार पर कायम रहें और अपने आप को बाहुनर करें, तो क्या होगा कि आने वाला वक्त हमारा होगा और खुशहाली और नई राहें हमारे ऊपर हमारी मुंतज़िर होंगी। तो इसी ख्याल को आप यहाँ पर पेश कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं, और यही आपकी दुआ है और इसी नेक तमन्नाओं का इजहार आप अपने इस मिली नगमे में कर रहे हैं। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। इस मिली नगमे का अंदाज़े बयां दुआया है। अहमद नदीम कासमी एक बुलंद पाया शायर हैं। आप लिखते हैं या दुआ गो हैं। इस नज़्म में, इस मिली नगमे में आप लिखते हैं या दुआ गो हैं कि मेरी अर्ज़े पाक बहार से महकती रहे और ये बहार कभी खत्म ना हो। अगर यहाँ पर फसले गुल से मुराद नौजवान को लिया जाए तो मफहूम कुछ यूं सामने आएगा कि मेरी अर्ज़े पाक के नौजवानों को ए खुदा वो काबिलियत, अरूज और इल्म अता फरमा कि वो मेरा वतन नाकाबिले तस्खीर हो जाए और यहाँ ज़वाल के गुजरने का अंदेशा ना हो। असल में यहाँ पर अहमद नदीम कासमी के मुखातिब नौजवान है इन अशार में। आगे चलकर वो कौम के लिए क्या दुआ करते हैं अगले अशार में हम वो देखेंगे। तो यहाँ पर वो क्या ख्याल पेश कर रहे हैं कि वो नौजवानों को मुखातिब कर रहे हैं। फसले गुल वो नौजवानों को कह रहे हैं कि वो ऐसे हो जाए, इल्म हुनर और तालीम में हर मैदान में इतने कामयाब हो जाएं कि वो नाकाबिले तस्खीर हों और मेरा वतन जो है, मेरे वतन पर ऐसी बहार उतरे। क्योंकि नौजवान किसी भी कौम का सरमाया होते हैं। इसकी वजह क्या है? इसके पीछे एक सोच है, क्योंकि नौजवान जो है किसी भी कौम का सरमाया होते हैं और कौम इनसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता रखती है। नौजवानों का इल्म हुनर में अरूज कौम की तरक्की का सबब बनता है। यहाँ पर सोच क्या है कि अगर नौजवान हुनरमंद होगा, उसको अरूज मिलेगा, वो फसले गुल ऐसी होगी तो मेरा अर्ज़े पाक उनकी खुशबू से महकेगा। इसलिए अहमद नदीम कासमी दुआ गो हैं कि उनके वतन के नौजवान वो इल्मी अरूज हासिल करें कि दुनिया में अपनी मिसाल बन जाएं, आप बन जाएं, हमारा वतन तरक्की की राहों पर गामजन हो जाए। मेरे वतन में बहार का राज हो और ये बहार कभी खत्म ना हो, और ये उसी वक्त मुमकिन है जब इल्मी मैदान में हमारे वतन के नौजवान को शिकस्त देना नामुमकिन हो जाए। बकौल इकबाल, उकाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। इसी बुलंद परवाजी और लाजवाल बहार का ख्वाब अपने वतन के नौजवानों के लिए अहमद नदीम कासमी भी देख रहे हैं, ताकि इस अर्ज़े पाक पर बहार का राज हमेशा कायम रहे और ये उनकी खुशबू से महकता रहे। और उनकी दुआ है कि यहाँ पर कभी ज़वाल ना आए, बहार कभी खत्म ना हो।
میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو.